Hello friends, welcome you all again our YouTube channel SRIP EduForm. In today's video, we will discussing about citric acid cycle. It is also called TCA cycle. Friends, citric एसिड साइकिल सभी मेटाबॉलिक पाथवे में सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो अथवा फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी होगा यह साइकिल इन्वॉल्व होगा। द साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। फ्रेंड्स, टीसीए साइकिल शुरुआत करने के पहले हमारे मन में 3-4 बातों का डाउट आना अति आवश्यक है। जैसे व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। वाई इट इज नो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे क्यों कहा जाता है। व्हाट इज लोकेशन एंड बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टीसीए साइकिल, इसका लोकेशन क्या है और बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है। एट लास्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन्वॉल्व रिएक्शन इन सिट्रिक एसिड साइकिल विथ देयर एनर्जेटिक्स। नाउ we are going to discuss one by one doubt in citric acid cycle. So first, what is citric acid cycle? The citric acid cycle is the most important metabolic pathway for the energy supply to the body. About 65 to 70% of ATP is synthesized in Krebs cycle. Means 65 से 70% हमारे शरीर की ऊर्जा क्रेब्स साइकिल में उत्पन्न होती है। सो सिट्रिक एसिड साइकिल essentially involve the oxidation of acetyl coenzyme to carbon dioxide and water. This cycle utilizes about 2 to 3rd of total oxygen consumed by the body. Next, why it is no central metabolic pathway. The citric acid cycle is the final common oxidative pathway for carbohydrate, fats and amino acid. This cycle not only supply the energy but also provide the many intermediate required for the synthesis of amino acids, glucose, heme, etc. Krebs cycle is the most important central pathway for connecting almost all the individual metabolic pathway either directly or indirectly. Next, what is the location? The TCA cycle are located in the mitochondrial matrix. This enables the synthesis of ATP by oxidative phosphorylation without any hindrance. Next, biochemical importance of TCA cycle. It is the final common oxidative pathway for carbohydrate, fats and amino acid through the formation of 2-carbon compound acetyl coenzyme. acetyl coenzyme क्या काम करता है यहाँ पर? acetyl coenzyme एज ए प्रिकर्सर यूज होता है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है? पायरुवेट. Pyruvate means whenever the glucose converted to pyruvate is known as the glycolysis cycle. Means ये interconnecting काम कर रहा है acetyl coenzyme. Second is acetyl coenzyme is oxidized to carbon dioxide and H2O producing energy. Third, TCA cycle are used for the synthesis of
hemi, non-essential amino acid, fatty acid, cholesterol and steroids. Means we can say that TCA cycle is amphibolic because it play both catabolic and anabolic role. ओवरव्यू ऑफ द टीसीए साइकिल, ओवरव्यू क्या होगा इसका देखते हैं. क्रेब्स साइकिल इज द बेसिकली इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विथ 4 कार्बन ऑफ ऑक्सोलोएसिटेट to produce the 6 carbon citrate. In this reaction that follow, the 2 carbon are oxidized to the carbon dioxide. इसमें क्या होगा 2 कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फिर से बाहर हो जाएंगे. एंड ऑक्सोलोएसिटेट इज रीजनरेटेड. ऑक्सोलोएसिटेट क्या होगा रीजनरेट होगा एंड रिसाइकिल. सो ऑक्सोलोएसिटेट इज द कंसिडर्ड टू प्ले द catalytic role in the citric acid cycle. An overview of the Krebs cycle. Friends, this is the overview of the Krebs cycle. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सोलोएसिटेट with the help of acetyl coenzyme converted to citrate. Citrate in the presence of enzymes converted to alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate in the presence of some enzymes converted to succinyl coenzyme, and succinyl coenzymes in the presence of enzymes again oxalo will converted on oxaloacetate. Okay, means हमको इस साइकिल में क्या देखना है दोस्तों कि 2 कार्बन का जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है जो ये प्रिकर्सर यूज कर रहे हैं जो कि हमको कहाँ से मिला है ग्लाइकोलिसिस से. पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ डी हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम. मींस 4 कार्बन का जो ऑक्सोलोएसिटेट रिएक्ट करेगा 2 कार्बन, कितने कार्बन हो गए 6 कार्बन. तो 6 कार्बन क्या बोलते हैं हम सिट्रेट. 6 कार्बन का सिट्रेट का जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कार्बोजिलेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट. अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर से हम कार्बोजिलेशन करेंगे बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम. मीन्स 2 बार कार्बोजिलेशन हो गया, हमने पहली बात किया था. अब इसमें कोई भी कार्बोजिलेशन नहीं होगा, बस प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होंगे कन्वर्ट होंगे. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके, तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. कैसे बनता है सिट्रेट? एज वी नो क्रेब्स साइकिल proper start with the condensation of acetyl coenzymes and oxaloacetate catalyzed by the enzymes citrate synthase. जैसा कि आप देख रहे हैं कि oxaloacetate react with the acetyl coenzyme in the presence of citrate synthase converted to citrate. means यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पर वैलेंसी की कमी है. क्या करेंगे यहाँ से जो CH3 है यहाँ से एक H बाहर निकलेगा जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और रिएक्शन हमको ये हो जाएगी CH2 COO COO CH2 COO. दिस इज नोन एज द सिट्रेट. ओके, सेकेंड एंड थर्ड सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट. व्हाट इज द आइसोमर? आइसोमर मीन्स जिस कंपाउंड का फिजिकल फार्मूला सेम होता है एंड स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो. मीन्स citrate is isomerized to isocitrate by the enzymes aconitase. Okay, this is achieved in a 2-stage reaction, dehydration followed by hydration through the formation of an intermediate cis aconitate. जैसे आप देख पा रहे हैं citrate in the presence of aconitase converted to isocitrate. means जस्ट क्या हुआ है आइसोमर. सिट्रेट का क्या बना है आइसोमर. बस H और OH क्या हुए आपस में चेंज हो गए. ठीक है, इसका दूसरा रास्ता भी क्या है उस रास्ते बन सकता है. सिट्रेट पहले कन्वर्ट किस में होता है सिस एकोनाइटेट में और सिस एकोनाइटेट आइसोसिट्रेट में. ओके, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट. द एंजाइम्स isocitrate in the presence of isocitrate dehydrogenase converted to alpha ketoglutarate. Okay, means यहाँ पर क्या होगा सेकेंड टाइम. यहाँ फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कार्बोजिलेशन होगा CO2 फॉर्म में बाहर हो जाएगा ये
और ये क्या होगा, ये दोनों निकल जाएंगे कहाँ पर, NAD विल बी चेंज ऑन NADH प्लस H आयन। ओके, नेक्स्ट, conversion of alpha keto to succinyl coenzyme. Alpha keto glutarate in the presence of alpha keto glutarate dehydrogenase, dehydrogenase मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अल्फा कीटो में कि COO, ये क्या इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बाहर, और अगेन सेकेंड टाइम यूज क्या करेंगे, NAD विल बी कन्वर्टेड ऑन NADH plus H ion. Okay, reaction will be this one, सक्सिनाइल कोएंजाइम्स। यहाँ पर क्या होगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसका कोएंजाइम्स है वो यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है। ओके, दिस वन रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट बाय सक्सिनेट कोएंजाइम सिंथेटेज एंड यू कैन, जब ये बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक कोएंजाइम्स क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर GDP रिएक्ट विद द पायरोफॉस्फेट कन्वर्टेड टू GDP, मींस वी कैन से सक्सिनेट कोएंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट कोएंजाइम सिंथेटेज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट। तो जब निकल जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्सन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, डिहाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ FAD विल कन्वर्टेड टू FADH2, मींस जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द फ्यूमरेट। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। द एंजाइम्स फ्यूमरेज कैटालाइज द कन्वर्सन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट विद द एडिशन ऑफ O2 H2O, मींस फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज कन्वर्टेड टू मैलेट। दोस्तों, हम जब फ्यूमरेज नाम के एंजाइम्स की जाए ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे H2O को जोड़ेंगे। क्यों, जब फ्यूमरेज नाम का एंजाइम आता है तो उसमें H2O क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और H2O will break down HOH, this one H and this one OH. Okay, next, conversion of malate to oxaloacetate. Malate is then oxidized to oxaloacetate by malate dehydrogenase. The third and final synthesis of NAD occurs this stage. This one, okay. Malate in the presence of malate dehydrogenase converted to oxaloacetate. Oxaloacetate again recombine with the acetyl coenzyme converted to citrate. Now I am going to discuss what is the energetics of the TCA cycle. Friends, during the process of oxidation of acetyl coenzyme by citric acid cycle, 4 reducing equivalents 3H NADH मतलब 3 बार हमने NADH को यूज किया है, 1H FADH2 are produced. Oxidation of 3 NADH by electron transport chain coupled with the oxidative phosphorylation, okay, result in this synthesis 9 ATP, मतलब 3 बार NAD हुआ है तो कितने ATP मिल गए, 3 त्रिका 9 ATP हमको मिल गए। वेरेज FADH लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, तो 9 2 11। बिसाइड देयर इज 1 सबस्ट्रेट लेवल इज द फॉस्फोरेशन, thus a total 12 ATP are produced from the 1 acetyl coenzyme। मीन्स जब एक बार पूरा TCA साइकिल कंप्लीट होता है तो हम कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 9 ATP NADH से, 2 ATP FADH2 से, 1 ATP GDP से GTP में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।